Good morning, students. Today we will read chapter first, the French Revolution, the struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 23 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 28 करोड़ हो गई. This led to a rapid increase in the demand for food grains, जिसके परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, so the price of bread, which was staple diet of the majority, rose rapidly. अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई. Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages. अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिकों द्वारा तय की हुई थी. But wages did not keep pace with the rise in prices. लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी. So the gap between the poor and the rich widened. परिणाम स्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई. Things become worse whenever drought or hail reduced the harvest. स्थितियां तब और भी बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old time. इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता. ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे. A growing middle class envisages an end to privileges. उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे. But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society. 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी. ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. तीसरे स्टेट में उन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all. किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए. स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना थी.
were put forwarded by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two treatises of government. समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. अपने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था. रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा. इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द USA आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी. The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ. These were frequently read loud in groups for the benefit of those who could not read and write. पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा. द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत. लुई 16 had to increase taxes for reason you have learnt in the previous section. पिछले भाग में आपने देखा कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे. How do you think he could have gone about doing this? क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा. In France of the old time, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था. Rather he had to call a meeting of the States Journal which would then pass his proposal for new taxes. इसलिए उसे स्टेट जर्नल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी. The state journal was a political body to which the three states sent their representatives. स्टेट जर्नल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेटों अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done
इट वाज डन वाज इन 1614। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स,